To enjoy the gems of modern Indian literature, please press the subscribe button and the bell icon next to it. Premchand's search for a moral foundation of modern India led him to various characters, and among them are Gangu and Gomti. Parallels can be seen in U.R. Anantmurti's Ghat Shraddh, which deals with similar concerns and issues, where a young widow Yamuna, who lives with her father who runs a Vedic school, is seduced and impregnated by a local school teacher. Later, she is forced to abort and declared as an outcast by her father, who under social pressure performs the last funeral rites of her living daughter. But if Anantmurti's Ghat Shraddh takes the path of negation, then Premchand's Balak and Rajendra Singh Bedi's Lajwanti takes the progressive path by establishing excellence and leads us by example. In the Ramayana, Valmiki stresses that Sita by her very nature is inherently incorruptible, but she too was ostracized. The Dharma Sutra lays down 9 points about a woman's incorruptibility. The first 7 are as follows. 1. A woman is not defiled by a lover, nor a Brahmin by Vedic rites, nor water by urine and excrement, nor fire by consuming impure substances. 2. A wife, though tainted by sin, whether she be quarrelsome, or have left the house, or have suffered criminal force, or have fallen into the hands of thieves, must not be abandoned. To forsake her is not prescribed by the sacred law. 3. Let him wait for the time of her courses. By her temporary uncleanness, she becomes pure. 4. Women possess an unequal means of purification. They never become entirely foul. For month by month, their temporary uncleanness removes their sins. 5. Women belong first to 3 gods: Som, the moon, the Gandharv, and fire, and only later or afterwards come into the possession of men. According to the law, they cannot be contaminated. 6. Som gave them cleanliness, the Gandharv their melodious voice, and fire purity of all limbs. Therefore, women are free from stains. And 7. Those versed in the sacred law state that there are 3 acts only which make women outcast. These are the murder of the husband, slaying of a learned Brahmin, and the destruction of the fruit of her womb. In the Chandogya Upanishad, Satyakam Jabal, eager for Vedic studies, approached sage Gautam, requesting him to be admitted to his Vedic school. The sage asked Jabal, "Dear child, what family do you come from?" The boy replied that he was of uncertain parentage and that his mother did not know who his father was. The teacher was pleased with this answer and he admitted Jabal to his school, as both the mother and the child had demonstrated truthfulness. And according to the Vedas, Sat or truth equals purity. And in the study of sacred knowledge, there is no higher criteria of eligibility than truthfulness. Premchand's symbolic choice of the word Gomti, or the heavenly cow, who represents woman's inner nature, which is considered as inherently holy and pure, draws us forward and registers that our orientation towards women is the foundation of all moral values. In this sense, Balak is the seed that predicates and defines the genesis of many progressive works to come. Balak by Premchand is the first person account given by the narrator about his servant Gangu. Gangu was an unusual servant. He behaved and acted as having all the traits of a Brahmin and wanted to be treated with due respect. According to the narrator, Gangu had no vices. He did not indulge himself in alcohol, nor was he interested in pan and bidi like his other servants. He was prompt,
performed his duties, took his salary, and maintained an austere self composure. One early morning, as the narrator was leaving for his walks, he found Gangu standing by the door. Assuming that he had come to ask for an advance on his salary, he was terribly annoyed. क्या कुछ पेशगी मांगने आए हो? मैं पेशगी नहीं देता। जी नहीं सरकार, मैंने तो कभी पेशगी नहीं मांगा। तो क्या किसी की शिकायत करना चाहते हो? मुझे शिकायतों से घृणा है। जी नहीं सरकार, मैंने तो कभी किसी की शिकायत नहीं की। गंगू ने अपना दिल मजबूत किया। उसकी आकृति से स्पष्ट झलक रहा था, मानो वो कोई छलांग मारने के लिए अपनी सारी शक्तियों को एकत्र कर रहा हो, और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, मुझे आप छुट्टी दे दें। मैं अब आपकी नौकरी नहीं कर सकूंगा। क्यों? कोई शिकायत है? आपने तो हुजूर जैसा अच्छा स्वभाव पाया है वैसा क्या कोई पाएगा, लेकिन बात ऐसी आ पड़ी है कि अब मैं आपके यहाँ रह नहीं सकता। ऐसा ना हो कि पीछे से कोई बात हो जाए तो आपकी बदनामी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी आबरू को बट्टा लगे। मेरे दिल में उलझन पैदा हुई। जिज्ञासा की अग्नि प्रचंड हो गई। आत्मसमर्पण के भाव से बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम तो पहेलियां बुझवा रहे हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते क्या मामला है? गंगू ने बड़ी विनम्रता से कहा, बात यह है कि वो स्त्री जो अभी विधवा आश्रम से निकाली गई है, वो गोमती देवी। वो चुप हो गया। मैं अधीर होकर बोला, हाँ, निकाल दी गई है तो फिर तुम्हारी नौकरी से उसका क्या संबंध? गंगू ने जैसे सिर का भारी बोझ जमीन पर पटक दिया। मैं उससे ब्याह करना चाहता हूं बाबूजी। मैं विस्मय से उसका मुंह ताकने लगा। ये पुराने विचारों का पोंगा ब्राह्मण, जिसे नई सभ्यता की हवा तक नहीं लगी, उस कुलटाक से विवाह करना चाहता है, जिसे कोई भला आदमी अपने घर में कदम भी ना रखने देगा। Gomti was a woman who had acquired great disrepute. She had come to stay in the home for the widows a few years back. Thrice the authorities got her married off, but she would leave her husband within a few days and return back to the ashram. Finally, the authorities got fed up with her and threw her out of the ashram. But instead of going away, she rented a small house in the village and began living there, becoming a great source of amusement for the young men. मुझे गंगू की सरलता पर क्रोध भी आया और दया भी। इस गधे को सारी दुनिया में और कोई स्त्री नहीं मिली थी जो इससे ब्याह करने चला था। जब वो 3 बार पतियों के पास से भाग आई तो इसके पास कितने दिन रहेगी? कोई गांठ का पूरा आदमी होता तो एक बात भी थी, शायद 6 महीने टिक जाती। ये तो निपट आंख का अंधा है, 1 सप्ताह भी तो निभानी होगी। मैंने चेतावनी के भाव से पूछा, तुम्हें इस स्त्री की जीवन कथा मालूम है? गंगू ने आंखों देखी बात की तरह कहा, सब झूठ है सरकार। लोगों ने हक नाहक उसको बदनाम कर दिया है। क्या कहते हो? वो 3 बार अपने पतियों के पास से भागकर आई नहीं है? उन लोगों ने उसे निकाल दिया सरकार, तो वो क्या करती? कैसे बुद्धू आदमी हो, कोई इतनी दूर से आकर विवाह करके ले जाता है, हजारों रुपए खर्च करता है इसलिए कि वो औरत को निकाल दे। गंगू ने भावुकता से कहा, जहां प्रेम नहीं है हुजूर, वहां कोई स्त्री रह नहीं सकती। स्त्री केवल रोटी कपड़ा ही नहीं चाहती, कुछ प्रेम भी तो चाहती है। वे लोग समझते होंगे कि हमने एक विधवा से विवाह करके उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान किया है। चाहते होंगे कि तन मन से वो उनकी हो जाए, लेकिन दूसरों को अपना बनाने के लिए पहले आप उसका बन जाना पड़ता है हुजूर। ये बात है।
फिर उसे एक बीमारी और भी है, उसे कोई भूत लगा हुआ है। ये कभी कभी बकझक करने लगती है और बेहोश हो जाती है। और तुम ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहते हो? मैंने संदिग्ध भाव से सिर हिलाकर कहा। समझ लो, जीवन कड़वा हो जाएगा। गंगू ने शहीदों के से आवेश से कहा। मैं तो समझता हूं मेरी जिंदगी बन जाएगी बाबूजी, आगे भगवान की मर्जी। मैंने जोर देकर पूछा। तो तुमने तय कर लिया है? जी हुजूर। तो मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करता हूं। मैं निरर्थक रूढ़ियों और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूं, लेकिन जो आदमी एक दुष्टा से विवाह करे उसे अपने यहाँ रखना वास्तव में जटिल समस्या थी। आए दिन टंटे बखेड़े होते, नई नई उलझनें पैदा होंगी, कभी पुलिस दौड़ कर आएगी, कभी मुकदमे होंगे, संभव है चोरी की वारदातें भी हों। इस दलदल से दूर रहना ही अच्छा। गंगू शुदा पंडित प्राणी के भांति रोटी का टुकड़ा देखकर उसकी ओर लपक रहा है। रोटी झूठी है, सूखी हुई है, खाने योग्य नहीं है, इसकी उसे परवाह ही नहीं। उसको विचार बुद्धि से काम लेना कठिन था। मैंने उसे पृथक कर देने में अपनी कुशल समझी। 5 months had gone by and Gangu had married Gomti and started living in the same village. Once in a while the narrator would run into him and secretly hoped to see him sad and disturbed, having realized his blunder by now. But Gangu defied all his logic and expectations, for his face shone brighter than ever. Happiness writ all over his face. Although he did not make a lot of money, he looked contented. Finally, the day arrived which the narrator had anticipated. With sinister satisfaction, he received the news that Gomti had left Gangu and run away from home. At least now, Gangu would realize that he should have paid heed to the advice of his well-wishers. Gangu should have known that a woman like Gomti, who had a record for not living with a single man for a long time, would behave with him in the same fashion. The narrator's happiness knew no bounds for having proven right. उसी दिन संयोगवश गंगू से बाजार में भेंट हो गई। घबराया हुआ था, बदहवास सा, बिल्कुल खोया हुआ। मुझे देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, लज्जा से नहीं, व्यथा से। मेरे पास आकर बोला, बाबूजी, गोमती ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने कुटिल आनंद से लेकिन कृत्रिम सहानुभूति दिखाकर कहा, तुमसे तो मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुम तो मान ही नहीं रहे थे। अब सब्र करो, इसके सिवा और तुम कर ही क्या सकते हो? रुपए पैसे ले गई है या कुछ छोड़ गई है? गंगू ने छाती पर हाथ रखा। ऐसा जान पड़ा मानो मेरे इस प्रश्न से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। अरे बाबूजी, ऐसा न कहिए। उसने धेले की भी चीज नहीं छुई। अपना जो कुछ था वो भी छोड़ गई। न जाने मुझ में क्या बुराई देखी। मैं उसके योग्य न था, और क्या कहूँ। वह पढ़ी लिखी थी, मैं करिया अक्षर भैंस बराबर। मेरे साथ इतने दिन रही, यही बहुत था। कुछ दिन और उसका साथ रह जाता तो आदमी बन जाता। उसका आपसे कहाँ तक बखान करूं हुजूर। औरों के लिए चाहे वो कुछ भी रही हो, मेरे लिए किसी देवता का आशीर्वाद थी। न जाने मुझसे क्या ऐसी खता हो गई, मगर कसम ले लीजिए बाबूजी, जो उसके मुख पर मैल तक आया हो। मेरी औकात ही क्या है बाबूजी, 10-12 आने का मजूर हूं, पर इसी में उसके हाथों इतनी बरकत थी कि कभी कमी ही नहीं पड़ी। मुझे इन शब्दों पर घोर निराशा हुई। मैं समझा था वह उसकी बेवफाई की कथा कहेगा और मैं उसकी अंधभक्ति पर कुछ सहानुभूति प्रकट करूंगा।
मगर उस मूर की आंखें अब तक नहीं खुली। अब भी उसी का मंत्र पढ़ रहा है। अवश्य ही इसका चित्त कुछ अव्यवस्थित है। मैंने कुटिल परिहास आरंभ किया। तो तुम्हारे घर से कुछ नहीं ले गई? कुछ भी नहीं बाबूजी, धेले की भी चीज नहीं। और तुमसे प्रेम भी बहुत करती थी। अब आपसे क्या कहूं बाबूजी, वह प्रेम तो मरते दम तक याद रहेगा। फिर भी तुम्हें छोड़कर चली गई। यही तो आश्चर्य है बाबूजी। त्रिया चरित्र का नाम सुना है कभी? अरे बाबूजी, ऐसा न कहिए। मेरी गर्दन पर कोई छुरी रख दे तो भी मैं उसका यश ही गाऊंगा। तो फिर जाओ, ढूंढ निकालो उसे। हाँ मालिक, जब तक उसे ढूंढ न लाऊंगा मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे इतना मालूम हो जाए कि वह कहाँ है, फिर तो मैं उसे ले ही आऊंगा। और बाबूजी, मेरा दिल कहता है कि वह आएगी ज़रूर। देख लीजिएगा, वह मुझसे रूठ कर नहीं गई, लेकिन दिल नहीं मानता। जाता हूँ, महीने 2 महीने जंगल पहाड़ की धूल छानूंगा। जीता रहा तो फिर आपके दर्शन करूंगा। Soon after this incident, the narrator left for Nainital. When he returned back after a month, he had an unexpected visitor. A proud and beaming Gangu stood waiting for him with a newborn baby in his hand. मैंने पूछा, क्यों महाराज, गोमती देवी का कुछ पता लगा? तुम तो बाहर गए थे। गंगू ने आपे में ना समाते हुए जवाब दिया, हाँ बाबूजी, आपके आशीर्वाद से ढूंढ लाया। लखनऊ के जनाना अस्पताल में मिली। यहाँ एक सहेली से कह गई थी कि अगर वो बहुत घबराए तो बता देना। मैं सुनते ही लखनऊ भागा और उसे घसीट लाया। घाते में ये बच्चा भी मिल गया। उसने बच्चे को उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया, मानो कोई खिलाड़ी तमगा पाकर दिखा रहा हो। मैंने उपहास के भाव से पूछा, अच्छा, ये लड़का भी मिल गया? शायद इसीलिए वो यहाँ से भागी थी। है तो तुम्हारा ही लड़का। मेरा काहे को होगा बाबूजी, आपका है, भगवान का है। तो लखनऊ में पैदा हुआ? जी बाबूजी, अभी कुल 1 महीने का है। तुम्हारे ब्याह को कितने दिन हुए? ये 7वां महीना जा रहा है। तो शादी के 6ठे महीने ही पैदा हो गया। और क्या बाबूजी, फिर भी तुम्हारा ही लड़का है? जी। कैसी बेसर पैर की बातें कर रहे हो? मालूम नहीं वह मेरा आशय समझ रहा था या बन रहा था। उसी निष्कपट भाव से बोला, मरते मरते बची बाबूजी, नया जन्म हुआ। 3 दिन 3 रात छटपटाई, कुछ न पूछिए। मैंने अब जरा व्यंग भाव से कहा, लेकिन 6 महीने में लड़का होता आज ही सुना है। ये चोट निशाने पे जा बैठी। मुस्कुराकर बोला, अच्छा ये बात, मुझे तो इसका ध्यान भी नहीं आया। इसी भय से तो गोमती भागी थी। मैंने कहा, गोमती, अगर तुम्हारा मन मुझसे नहीं मिलता तो तुम मुझे छोड़ दो। मैं अभी चला जाऊंगा और फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुमको जब कुछ काम पड़े तो मुझे लिखना, मैं भरसक तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुमसे कुछ मलाल नहीं है गोमती। मेरी आंखों में अब भी तुम उतनी ही भली हो। अब भी मैं तुम्हें उतना ही चाहता हूं। नहीं, अब मैं तुम्हें और ज्यादा चाहता हूं। लेकिन अगर तुम्हारा मन मुझसे फिर नहीं गया है तो मेरे साथ चलो गोमती। गंगू जीते जी तुमसे बेवफाई नहीं करेगा। मैंने तुमसे इसलिए विवाह नहीं किया कि तुम देवी हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें चाहता था और सोचता था कि तुम भी मुझे चाहती थी। बाबूजी, ये बच्चा मेरा बच्चा है, मेरा अपना बच्चा। मैंने एक बोया हुआ खेत लिया,
तो क्या उसकी फसल को इसलिए छोड़ दूं कि उसे किसी दूसरे ने बोया था? यह कहकर उसने जोर से ठट्टा मारा। मैं कपड़े उतारना भूल गया। कह नहीं सकता क्यों मेरी आंखें सजल हो गईं। न जाने वो कौन सी शक्ति थी जिसने मेरी मनोगत घृणा को दबाकर मेरे हाथों को बढ़ा दिया। मैंने उस निष्कलंक बालक को गोद में लिया और इतने प्यार से उसका चुंबन लिया कि शायद अपने बच्चों का भी कभी ना लिया हो। गंगू बोला, बाबूजी, आप बड़े सज्जन हैं। मैं गोमती से बार बार आपका बखान किया करता हूँ। कहता हूँ, चल एक बार उनके दर्शन करा, लेकिन मारे लज्जा के वो आती ही नहीं। मैं और सज्जन। अपनी सज्जनता का पर्दा आज मेरी आंखों से हटा। मैंने भक्ति में डूबे हुए सर से कहा, नहीं गंगू, मेरे जैसे कलुषित मनुष्य के पास वो क्यों आएगी? चलो, मैं उनके दर्शन करने चलता हूं। तुम मुझे सज्जन समझते हो गंगू? मैं ऊपर से सज्जन हूं, पर दिल का कमीना हूं। असली सज्जनता तुम में है, और ये बालक वो फूल है जिससे तुम्हारी सज्जनता की महक निकल रही है। मैंने बच्चे को छाती से लगाया और गंगू के साथ चल दिया। दिस इज बालक by Premchand. Read it to enjoy it more. Till then,